Good morning everyone. Yesterday we have solved the question 1 and 2 of exercise 7.3. Today we will solve question number 3rd, 4th and 5th. Now the question number 3rd is two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC. तो ये इस ट्रायंगल में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में टू साइड्स AB साइड और BC साइड AB साइड और BC साइड एंड मीडियन AM आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ के बराबर है और QR के और PN के. इट मीन्स AB साइड जो है वो PQ के बराबर है, BC साइड QN के बराबर है और मीडियन AM मीडियन PN के इक्वल गिवन है. नाउ question is to show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. तो हमें ये वाला ट्रायंगल जो ABM ट्रायंगल है उसे PQN ट्रायंगल के congruent करना है. सो लेट्स सॉल्व. Now what is the question? Question is about question number 3rd is we have a triangle ABC and a PQR like triangle ABC and a triangle PQR where AM is the median and PN is also median for triangle PQR. What is given? Given is that AB side is equal to PQ. So AB side is equal to PQ. So we will write AB is equal to PQ and BC is equal to QR. BC जो है QR के बराबर गिवन है and median AM is equal to median PN. Now first part to show. First part is triangle ABM is congruent to triangle PQN. Now the solution is as. Now it is given that AM is median, PN is median, so we can say BC is equal to QR given है. If we will multiply both the side by half, so half of BC will be BM and half of QR will be QN. So this is equation number 1. Now in triangle ABM and in triangle ABM, इस वाले ट्राइंगल में ABM ट्राइंगल में देखते हैं ABM ट्राइंगल और PQN ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. तो कैसे होगा ये देखते हैं. इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN, AB equal to PQ which is given, BM equal to QN अभी निकाला हमने from equation 1 and AM equal to PN which is also given. So 3 टर्म्स हमें पता चल गए कि 3 चीज़ें इक्वल हो गई. तो सो वी कैन से दैट हैंस triangle ABM is congruent to triangle PQN by SSS property. SSS criteria से ये दो triangle congruent हो गए. Now we can say that angle B equal to angle Q. So angle B will be equal to angle Q by CPCT. Now what is the second part of the question? Now the second part of the question is
Now the second part of the question is show that triangle ABC is congruent to triangle PQR. ट्राइंगल जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, आउटर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC को हमें PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो वी विल डू लाइक, अब देखो लेट्स सी, हमने ये वाला ट्राइंगल जब ये ABM ट्राइंगल को PQN ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट किया तो हमें ये मिला कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q. तो इसका यूज़ करेंगे हम. सो सेकेंड पार्ट, in triangle ABC and triangle PQR. AB equal to PQ, AB equal to PQ, AB is equal to PQ is already given. AB is equal to PQ and BC is equal to QR. AB is equal to PQ given and BC is equal to QR is also given and angle B is equal to angle Q. अभी हमने यहाँ से देखा था, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसे. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमें गिवन था कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, CPCT से हमने डिराइव किया था. नाउ ट्राइंगल, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by which property? Now we will see the criteria how we have to check only one triangle. So check this in triangle ABC that we have used this side and angle. तो side angle side से ये triangle congruent हो गया, side angle sides. Now the second question of today is BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. BE और CF दो equal altitude दिए हैं किसी triangle ABC के. Now using RHS congruence rule, RHS का यूज़ करते हुए prove that the triangle ABC is a isosceles triangle. So हमें प्रूव करना है कि ABC एक isosceles triangle है. Now we will solve this question like this. Question number 4. Now here is a triangle ABC in which BE and CF are altitude. So they will make right angle at here. Point E and F पर right angle बनाएंगे क्योंकि BE और CF जो है हमारे altitudes हैं. So what is given? Given is that BE is equal to CF. Equal altitude थे वो. Now we have to show that. To show क्या show करना है हमें? We have to show that ABC triangle ABC is an isosceles triangle. This question is very simple. So look at the solution. In triangle, तो हम कौन सी दो ट्राइंगल में लें? ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BEC ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे BFC ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC, देखो BEC में BE इक्वल है FC के. सो वी कैन से दैट BE इक्वल टू FC विच इज़ गिवन. BEC का एंगल E BFC के एंगल F के बराबर है. सो वी कैन राइट एज एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC ईच 90 डिग्री. एंड BC साइड जो है इस ट्राइंगल BEC में भी है
और बी एफ सी में बी सी साइड भी है, तो इट मीन्स बी सी इज़ अ कॉमन साइड. सो वी कैन राइट एज बी सी इक्वल टू बी सी विच इज़ कॉमन साइड. तो we have got three terms like, so we can say that hence triangle BEC is congruent to triangle BFC by which criteria? So we have to check the criteria. अगर हम BEC ट्राइंगल की बात करें, BEC, तो हमने इसमें ये वाली साइड यूज़ की है एक, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये है, तो 90 के सामने जो होता है दैट इज़ हाइपोटेनियस. सो ये भी यूज़ किया हमने. सो हाइपोटेनियस यूज़ किया हमने, राइट एंगल यूज़ किया, और इन दोनों में से कोई एक साइड, इट मीन्स एक साइड यूज़ किया हमने, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड. सो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS. RHS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो इन ट्राइंगल BFC में हम कह सकते हैं कि BFC का एंगल C, BEC ट्राइंगल का एंगल C और BFC का एंगल B दोनों बराबर हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT. अब हमारे पास ट्राइंगल ABC में अगर दो एंगल इक्वल हैं, ये वाले आउटर वाले ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट दी साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. सो वी कैन से दैट AB इक्वल टू AC बाय थ्योरम विच इज़ अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल. अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल. अब दो साइड बराबर किसी ट्राइंगल में अगर इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल. Now we will move to the next question. Next question is question number 5th. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to show that angle. So क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल है कोई ABC ट्राइंगल में AB बराबर AC की बने एंड AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC. तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 5th. We have given a triangle ABC in which AP is perpendicular. So what is given? Given is AB बराबर AC and AP is perpendicular to BC. Perpendicular means AP जो साइड होगी वो BC साइड पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. सो वी हैव टू शो दैट, टू शो क्या करना है हमें, टू शो दैट एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C. नाउ कैसे हो सकता है ये देखते हैं. एंगल B और C दो ट्राइंगल में दो एंगल कब इक्वल होते हैं, जब हम उनको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APC. सो AB इक्वल, इट इज़ क्लियरली सीन दैट AB इक्वल टू AC विच इज़ गिवन. ये वाली साइड इसके बराबर तो गिवन है हमें. नाउ एक एंगल इसका 90, तो यहाँ पे ये भी 90 बिकॉज AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC. सो एंगल APB इज़ इक्वल टू एंगल APC ईच 90 डिग्री एंड AP साइड इज़ कॉमन. AP ये साइड दोनों ट्राइंगल में यूज़ हो रही है. सो AP इक्वल टू AP कॉमन साइड. So we can say that triangle ABP is congruent to triangle APC by, अब देखते हैं किससे हुआ है ये. अगर हम एक ट्राइंगल को ही देखें तो यहाँ पे A है, ये B एंड दिस इज C.
सो एक एंगल हमने 90 यूज़ किया है, एक हमने इसका 90 के अपोजिट में जो होता है दैट इज़ हाइपोटेनियस, और एक साइड यूज़ की है तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। सो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। सो वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। सो we have done all the questions of exercise 7.3 like 1 2 3 4 and 5. So this chapter is completed. What is the homework? Homework will be like you have to do in homework is do all examples in your maths notebook. Now the first homework is do all the examples in your maths notebook. Second is revise all the exercise in your rough notebook. So if we will revise the chapter in brief, what was in the chapter, so in this chapter we have studied about congruency, first we have studied about all the criteria of congruency like triple S, SAS, ASA, AAS and RHS. These are the 5 criteria for the congruency. And next we have studied about the theorems of isosceles triangle, that if two sides of a triangle are equal, then opposite sides of that triangle will be equal, opposite angles of. So अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसमें दो एंगल अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. इट मीन्स अगर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा. एंड द थ्योरम इज कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे. इट मीन्स इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आपको गिवन है, सो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज है और हमने वो तीनों एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट कर ली है. नाउ वी कैन सी द समरी ऑफ द चैप्टर, दैट like two figures are congruent if they are of the same shape and the same size. अगर उनका शेप सेम होता है और सेम साइज होता है तो congruent फिगर होते हैं. टू सर्कल ऑफ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट. दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके रेडियाई सेम होंगे. टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट. सेम साइड के जो स्क्वायर होते हैं, अगर दो स्क्वायर ले रहे हैं हम, अगर उनकी साइड सेम है, ये 3 है तो ये भी 3 यूनिट का अगर स्क्वायर है, देन दीज टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ़ टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द correspond A to B, B to C, A to now corresponding to A to P, B to Q and C to R, then symbolically it expressed as triangle ABC is congruent to PQR. now ये आपको congruency की क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, SAS, ASA और AAS. now angle opposite to equal side of a triangle are equal. साइड अपोजिट टू इक्वल, ये थ्योरम है, थ्योरम, और ये इसका कन्वर्स. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन भी था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है. ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया और ये RHS. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल अबाउट द
criteria of congruency. So revise the concept and all the questions again. So thank you.